आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यू आर ऑल वेलकम। तो अभी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, अगर आपको कुछ पूछना है, आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये अब आपका समय है। दिस इज योर टाइम, यू कैन आस्क। यस, गो हेड। साई, यू आर क्वाइट बिजी दिस टाइम। यू डोंट पुट ऑन योर कैमरा। वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? साई सौभाग्यम। Sir, I'm doing night shift, sir, this week. ओह आई सी। चलो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। May I ask one question, sir? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। Sir, just uh, gone through the Busy Meridian book, sir. So I observed that we are capturing CV horizontal meridian, GV horizontal meridian, like a Yang G cleft point and a Yang source point. We are mapping it with CV and GV. Also, we are mentioning as a supercontroller. Like pericardium triple armor is a controller and GVCV is a supercontroller. I saw some of the applications. We are mentioning it. So just to know more about that, sir, about your observations, I'm eager to know that. Yes, you are right. This is an incomplete work. I have not been able to really do the shoe points on vertical GV and CV. I have not been able to really find out. And this, I think I won't be able to do it because I don't have a regular clinic. So that is a drawback. And I leave it to my students like you who should find out the vertical, like for example, GV26. This can be Jingwell point on governor vessel, right? Like CV4 can be fire point on CV vessel. Like CV6, that can be hotness point on CV vessel. So, like GV23, that can be cold point. GV26 dryness, this is cold, right? And then this is probably GV16. That can be humidity. But I have not been able to conclude. And unless I find a vertical shoe points, so we can't really incorporate everything. So this work is incomplete, and I don't think I shall be able to complete it in my lifetime. Uh, so I leave it to people like you. Do it. Half of the work I have done. Okay, sir. So the source points on what is GV and CV? Have you noted it? Yes, sir. Like So GV CV is is GV is what? cleft point of Yang meridians. Z clef points, and Yes. CV is source point Source of Yang of meridian. Yang. Yes, sir. Yes, sir. So this will be a great thing. Good job. There is a there is a vacancy. There is a vacuum. You are research oriented. Do it. And if you have a clinic, then try it. And once you have tried it, then we can put it, add it. Okay, sir. Don't worry. You can use horizontal if you want to. That you can use. Okay. There is no doubt in it. I have done that. Okay, sir. Vertical, you have to find out. And once vertical is known, then the diagonals can also be formed. Oh, okay, sir. So, but between PC triple armor and CVGV horizontal, like when to choose supercontroller, when to choose controller, is there any uh, guidelines, sir? No, no, no. Supercontroller means even
Pericardium and triple warmer, they are included. The chi which is not utilized by pericardium and triple warmer, that also is connected to CV and GV. That's all, nothing else. Instead of that, if you are using EOV before you go to the meridians, you may skip this GVCV because you are using EOVs. Each EOV, every vessel is connected to GV4, isn't it? DU4. DU4 means Mingmen, which is Mingmen. connected again to kidney, and kidney is the main supplier for all the extraordinary vessels. So if you look at it, then kidney is the super boss, super controller, then super boss. So that we are using it. We have water and fire. If you really know water and fire, then you CV, GV can be easily substituted by fire and water kidney. But yes, if you can find it, that will give an additional ammunition. चलो, एनीथिंग एल्स? Yes. और Thank कोई you, कुछ sir. पूछना चाहता है? कोटियाड को नहीं, कटोडिया, कटोडिया केतन भाई। हाँ सर, कोटड़िया। हाँ, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं सर। ठीक है अभी तक सब? हाँ अच्छा, Venkatesh, I have seen one of your images that you have sent in the group that is not correct. Yes, sir. So you have to be very careful to learn it again. नहीं तो सब बीजी मेडिसिन गोबर हो जाएगा. You will never get the results. Yes, sir. Yes, sir. Uh, you have to learn very carefully and then again try and send it. Okay? He has used bar magnets and sent some कुछ images भेजा है, some images in the group. Venkatesh. That is not correct. So I don't know. Sridhar is telling me that he has also sent something. No, that is on your personal WhatsApp, not in the group. Oh, I see. Because I'm not sure whether it is right. If it is right, then I'll put it in the group. Let us all see it. Now we know that tonification and sedation that we are using for BG meridians, we are trying to affect the deep circulation of chi. Meaning thereby, if the chi is transferred from one phase to the next phase, it is tonification, and if it is transferred from the phase ahead to the previous phase, it is sedation. Right? And now how the things are moving, how the meridians are there. Lungs is in hand, kidney is in the leg, then liver again is in the leg, then again heart and pericardium is in the hand, then spleen is in the leg, then lungs is again in the hand, and then kidney is again in the leg. So hand leg. Only the transfer from kidney to liver is from leg to leg. किडनी से लिवर में जो ट्रांसफर हो रहा है या लिवर से जब किडनी में, लिवर को छोड़ दीजिए, लिवर तो इट इज ऑल राइट, लिवर पैर में है, सो टोनिफिकेशन तो हाथ की तरफ भेजेंगे, क्योंकि लिवर के बाद कौन सा फेज का मेरिडियन आता है? फायर फेज का. हार्ट मेरिडियन है, पेरिकार्डियम मेरिडियन. तो लिवर की मेरिडियन को टोन करना है तो हाथ में, पैर से हाथ में भेजेंगे. और पॉस्चर कैसा है? एनिमल पॉस्चर. नहीं, और बहुत अच्छा बनाया है श्रीधर ने. ऑल ऑफ यू कैन सी इट, राइट? सो टोनिफिकेशन सेडेशन, सबसे पहले हम लोगों को सीखना चाहिए कि हॉरिजेंटल मेरिडियन में टोनिफिकेशन सेडेशन कैसे होगा. यू वांट मी टू शो यू ऑन माय हैंड? आई कैन ब्रिंग. सबके पास मैग्नेट्स या नीडल्स है? ऑल ऑफ यू हैव नीडल्स और मैग्नेट्स और
टेप सबके पास है कि नहीं है? सब लोग लेके बैठ जाइए, सब लोग लेके बैठिए। चलो मैं भी लेके आ गया। हाथ के पॉइंट्स में बहुत आसान है, चाहे यिन मेरिडियन हो, यिन मेरिडियंस आर ऑन द यिन सरफेस एंड yang meridians are on the yang surface. So hand meridians, that easy. Yin meridians are here and yang meridians are here. Now, any horizontal tonification and sedation in the horizontal meridians, how we can do it? Any horizontal, so lungs horizontal or pericardium horizontal or heart horizontal or LI horizontal, triple warmer horizontal, यहाँ से चलेंगे. So anything that you want to tonify, the direction to push the chi should be from thumb side to small finger side. Either this side and this side also, thumb to small finger side. Tonification is this. What will be sedation? Just the reverse. If you want to sedate, then you should push the chi of any meridian here, any point on the meridian, you should push it towards thumb. And here also, if you want to sedate any meridian, this meridian, this meridian, or this meridian, you have to push the chi from small finger side to thumb side. So this is sedation. This is, if you put it like this, so for example, we will do it. All of you should do it. I'm taking this bar magnet to show you. The chi flows from white to yellow. White to yellow. So what we can do, we can take a piece of tape. We can put it like this. We are taking the point LU8. This is LU8. Right on the bone where you get a pulse. If you keep your finger, you will get a pulse. Needle में और इसमें क्या है? If you have to put a needle, then you have to remove this pulsating vein to one side before you pierce a needle. Otherwise, you can puncture the vein and that will create a problem, bleeding. But in magnet, you are safe. You can put it without worrying for any puncture or any bleeding. But then these magnets will work a little, it will take longer time and more number of sittings. So if you have to tonify LU8, this is my right hand. So it will be like this. Can you see, all of you? Can you see? हाँ सर. ये येलो है, ये व्हाइट है, और ये छोटी उंगली की तरफ में येलो है. This is tonification of LU8 horizontally.
हर पॉइंट को हॉरिजेंटल वर्टिकल में टोन और सेडेट कर सकते हैं अगर, देन ओनली वी कैन गो टू डायगोनल मेरिडियंस और स्पाइरल मेरिडियंस। ठीक है, दिस इज LU8। सो अगर LU7 में करना है तो यहाँ लगाएंगे, LU7 यहाँ है, LU9 यहाँ है, LU5 यहाँ है। सो वी कैन डू ऑल द पॉइंट्स ऑफ लंग्स मेरिडियन। आपने येलो स्मॉल फिंगर की तरफ बताया कल। हाँ, देखो दिस इज टोनिफिकेशन ऑफ LU8। सूरज इज वांट्स टू। Sir, show your hand once again. यस सूरज, शो मी। नो, अभी LU8 वहां नहीं है। LU8 इज नॉट ऑन द एज। LU8 राइट इज राइट ऑन द सेंटर ऑफ द बोन, फ्रंट में है बिल्कुल। आपने साइड में लगाया हुआ है। येलो दिखाओ। सेंटर ऑफ द बोन, हाँ, सेंटर ऑफ द बोन। हाँ तो नहीं, सेंटर ऑफ द बोन में नहीं है, देखो येलो नहीं दिख रहा है ना आपका, किधर है? येलो है। नहीं, देखो ना, मैं लगाता हूं तो कैसे दिखता है, देखो दिख रहा है ना? आपका कहाँ दिख रहा है? मैं लगा रहा है इधर। हूं, मैं जब बाहर लगा रहा हूं ना एकदम पूरा, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाइए। लंग्स मेरिडियन सूरज कैसे आता है मालूम है? यहां पर किनारे हाँ में जी। है, LU9 यहाँ है, देखो देखो फ्रंट, यू 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 जस्ट सी। देखिए, लंग्स मेरिडियन के पॉइंट्स को देखो पहले। लंग्स मेरिडियन इन इटसेल्फ is something which you should know. I don't know about Suraj knows it or not. All of you should know. The lungs meridian में this is LU9. Then this goes up and it comes here. This is LU8. Yeah. And then it comes here back and this is LU7। LU7. ऐसे चल रहा है अर्धचंद्राकार। Can you see? यस। So LU8 is right here. या। Yes, वेंकटेश आपके पास है, आप दिखाइए। केतन भाई आप भी लगा के दिखाइए। टोनिफिकेशन ऑफ LU8। येलो किधर है? फ्रंट में रखो, हाथ के फ्रंट में रखो, यहां पे रखो। दिखाओ दिखाओ, लेंस के पास ले जाओ। करेक्ट, दिस इज टोनिफिकेशन। सेडेशन करेंगे तो जस्ट जस्ट उल्टा हो जाएगा। सेडेशन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। यस केतन भाई, यू आर गेटिंग इट, समझ में आ रहा है? इसमें येलो स्मॉल फिंगर की साइड में है या वाइट है स्मॉल फिंगर साइड में? क्या क्या बोल रहे हैं? टोनिफिकेशन में स्मॉल फिंगर साइड में तो वाइट होना चाहिए। येलो होना और चाहिए। जब आप टोनिफिकेशन में कह रहे हैं, हाँ बोलिए। टोनिफिकेशन में इसके वाइट और येलो की लोकेशन डायरेक्शन क्या होगी सर? LU8 में सर आपको मालूम है एनर्जी किधर से किधर जा रही है? व्हाइट से येलो की तरफ, ठीक है? हेलो, जी सर। हाँ सर। सूरज बोल रहे हैं ना आप? रमेश बोल रहा हूँ सर। ओहो रमेश, मैंने सूरज को किया हुआ है स्पॉटलाइट। 1 मिनट। रमेश, वेयर इज रमेश? यहाँ है। हाँ रमेश जी, अभी दिखाइए।
आप ये सर समझो, ऐसे हाथ है ना, ऐसे हाथ है, तो सर हाथ और पैर ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो पैर की तरफ ठीक जाएगा है, तो छोटी उंगली की तरफ जाएगा, पैर की तरफ जाएगा तो किधर जाएगा, छोटी उंगली की तरफ जाएगा, छोटी उंगली की तरफ जाएगा। है ना। तो येलो छोटी उंगली की तरफ जाएगा। लगाओ, आप लगा के दिखाओ एल्यूएट पे। टोनिफिकेशन ऑफ एल्यूएट, हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन ऑफ एल्यूएट। आप साइड में क्यों लगाना चाहते हैं सब लोग, आई डोंट नो। हमारा तो एल्यूएट बहुत बड़ा इधर आ जाता भाई। देखो, देखो मेरा, देखो आप, अब आप मुझे देखो, कितना आ रहा है सामने, दिख रहा है। आप लोग तो, आपका इधर कैसे चले जाता है, यहां कैसे चले जाता है भाई। दिस इज नॉट एल्यूएट। एल्यूएट इज नॉट देयर, एल्यूएट इज इन द फ्रंट, बिल्कुल सामने है। एल्यूएट बिल्कुल इधर है, छुपा हुआ नहीं है। LU7 और LU9 छुपा हुआ है। हमने आपको मेरिडियन भी दिखाया कैसे आ रहा है, बुक में नहीं, ऐसा ऐसा नहीं दिखाते हैं मेरिडियन, बट मेरिडियन ऐसे ही आ रहा है। दिखाइए एल्यूएट टोनिफिकेशन, किधर है येलो। येलो स्मॉल फिंगर की तरफ साइड में है। हाँ, ये टोनिफिकेशन है। सेडेशन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पूरा अपियर नहीं हो रहा है। तो और नीडल लगाएंगे तो नीडल का एंगल कैसा रहेगा, नीडल लगाएंगे तो ऐसा रहेगा। ये टोनिफिकेशन है। और इधर से लगाएंगे तो ये सेडेशन है, ये सेडेशन होगा। केतन भाई ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। TW5, TW5 को हॉरिजेंटली टोन करके बताइए केतन भाई। TW5 हॉरिजेंटली टोनिफिकेशन, हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन ऑफ TW5। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। किसी को डाउट है इसमें, कल्याण, इज इट क्लियर। हाँ ठीक है, किरण भाई आपका उंगली ओपन कीजिए। हाँ ओके, थैंक यू, अंडरस्टूड। गुड। सेडेशन करेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन। देखो सेडेशन करके दिखाओ TW5 केतन भाई। ये सेडेशन है। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो कोई भी सर पॉइंट हो, हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन सेडेशन आपको मालूम है। अभी वर्टिकल टोनिफिकेशन सेडेशन भी मालूम है। कभी जा। वर्टिकल का मालूम है कि नहीं सबको, ऑल ऑफ यू नो। सर मिरर डायरेक्शन चेक। हाँ, अच्छा मान लीजिए TW6 को वर्टिकली टोन करिए। एक मैग्नेट लगा हुआ है TW5 पे, एक मैग्नेट TW6 पे और लगाइए, दूसरा मैग्नेट लीजिए। और चौड़ा मत लो, टेप बिल्कुल पतला ले लो, सो दैट आराम से दोनों तरफ से मैग्नेट दिखेगा। TW5 चेक करें सर। रमेश, जी सर। आपका टेप ऐसा है कि हमको दिखता ही नहीं है कलर। सर मिरर चेक करो TW5। इसमें येलो स्मॉल फिंगर की तरफ रहेगा। हाँ, मेरा येलो अभी स्मॉल कंफ्यूजन इसमें। फिंगर की तरफ रहेगा तो टोनिफिकेशन है, ये ध्यान रखिए। हाँ, वो मेरा बस, अभी वो और कोई नियम कंफ्यूजन ही से नहीं ये है, है। दैट इज द ओनली रूल। ओनली रूल इज कि स्मॉल फिंगर के साइड में येलो रहेगा। अभी देखो अब मैं चेक आपको करें सर। दिखाता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ।
TW5 एंड TW6 एक कोण के अंतर पे है। मैं असल में हमको दोनों एक ही जगह में नहीं लगा सकते टेप से, इसके लिए हम आपको दो अलग अलग पॉइंट्स में दिखा रहे हैं दोनों टोनिफिकेशन। Needle check करो। Sir, I have applied needle. ये है और ये है। अब देखिए आप, अगर दो मैग्नेट ऐसे लगा हुआ है, एक में वर्टिकल टोनिफिकेशन और एक सेडेशन, हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन एंड वर्टिकल टोनिफिकेशन, यहाँ असल में लगता है जब हाथ घूमता है तो घूम जाता है वो। तो लेट अस डू इट इन सच ए वे दैट इट इज इजी फॉर अस टू नो। ऐसे लगाना पड़ेगा ताकि आपको सही से दिखे। उल्टा सीधा पॉइंट लगाना होगा। ओके, और इधर चला गया। सो लेट अस कीप इट हियर। ओ घूम जाता है हाथ। अभी देखो, एक पॉइंट वर्टिकली सेडेट हो रहा है, TW6 सेडेट हो रहा है, और TW5 टोन हो रहा है। अगर एक ही पॉइंट पर ये टोन और सेडेट हो तो जो रिजल्टेंट होगा वो किधर जाएगा? एक फोर्स इधर से जा रहा है, एक फोर्स इधर से जा रहा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा। कहाँ आएगा? सॉरी, इधर आएगा। रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा। देखिए, अगर एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो रिजल्टेंट किधर आ रहा है? नीचे की तरफ, फिंगर नेल्स की तरफ। ये बात समझनी होगी। इसको समझने के लिए नाउ बी रेडी, सब लोग तैयार हो जाइए। इन साइड में लीजिए, वेरी इजी। सबसे P6 लीजिए। P6 को हॉरिजेंटली अगर हम टोन करें तो ऐसे लगेगा, और अगर P6 को वर्टिकली टोन करें तो कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। तो अगर P6 ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल टोन है, तो जो जो रिजल्टेंट होगा
P6 से छोटे फिंगर की तरफ डायगोनल चलेगा। सबको समझ में आ जाए बस, और क्या। देखिए, ये दिख रहा है आपकी, नहीं दिख रहा है? टोनिफिकेशन इधर है और ये टोनिफिकेशन इधर है, तो रिजल्टेंट किधर होगा एक्चुअल? ये डायगोनल मेरिडियन है। P6 के स्पाइरल मेरिडियन में P6 टोन होगा तो इधर चला जाएगा, सर थोड़ा वर्टिकल में टोन होगा तो इधर आएगा, और आपका थोड़ा हॉरिजॉन्टल। हाथ पीछे कीजिए। हाँ, थैंक यू। कैन यू सी? थोड़ा डिम दिख रहा है। नाउ इट इज ओके। तो जो ब्लू कलर से है दैट इज दी स्पाइरल मेरिडियन, दैट इज डायगोनल मेरिडियन टोनिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन टोनिफिकेशन, वर्टिकल मेरिडियन टोनिफिकेशन, दोनों का रिजल्टेंट टोनिफिकेशन ऑफ डायगोनल मेरिडियन P6। You are saying that it is coming in second quadrant, sir, the resultant? हाँ, नहीं, कैसे आएगा? तो क्योंकि एक इधर लग रहा है हम्म, और एक इधर लग रहा है, ओके तो उसका रिजल्टेंट इधर ही होगा ना। ओके सर, गॉट इट। अगर मान लो हमें P6 को स्पाइरली सेडेट करना हो तो क्या करेंगे? पहले हम हॉरिजेंटली सेडेट करेंगे तो कैसे लगेगा? ऐसे सेडेट होगा, दिस विल बी सेडेटेड लाइक दिस, राइट? और क्या करना होगा? अगर हम इसको नीचे की तरफ से टर्न कर दें, मतलब टुवर्ड्स द टो, नेल्स, नेल हमारे कहाँ है? ग्राउंड में है कि ऊपर है? हाथ का नेल हो चाहे पैर का नेल हो। तो अभी हम लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या देखा? हम लोगों ने जो हमने ये ड्रॉ किया था वो क्या था? मेरिडियन के हिसाब से। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, दिस इज नॉट द वे दैट वी डू, ये गलत है। बीजी मेरिडियन में क्या है? आई थिंक किसका साउंड आ रहा है? गुप्ता, बैकग्राउंड का साउंड आ रहा है। देखो, अब ये मिस्टेक है, दिस मिस्टेक वी शुड नॉट डू। अभी जो हम लोगों ने किया P6 का स्पाइरल मेरिडियन का टोनिफिकेशन, दिस इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? ये बात समझने वाली है। वर्टिकल मेरिडियन में टोन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में टोन, तो हमने रिजल्टेंट निकाल दिया। बात दिस इज वेयर द पीपल मेक मिस्टेक। यहां पर हम मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफर द ची फ्रॉम लोअर फेज टू हायर फेज, लोअर फेज टू हायर फेज। समझना चाहिए इसको। अभी हम लोगों ने क्या किया है, P6 को जो डायगनली टोन किया था दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। क्यों गलत है? दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। देखिए, व्हाट वी आर सपोज टू नो इज, फर्स्ट फेज कहाँ है? यहाँ है, ग्राउंड लेवल पे। ये क्या है? ग्राउंड है ना? दिस इज ग्राउंड लेवल। So first phase is here, second phase is here, third phase is here, fourth phase is here, fifth phase is here.
तो chi should be transferred from first phase to second phase, that is tonification. Second to third, that is tonification. Third to fourth is tonification. Fourth to fifth is tonification. और अगर उल्टा आ रहे हैं तो सेडेशन है. सेकेंड टू फर्स्ट सेडेशन, थर्ड टू सेकेंड सेडेशन, फोर्थ टू थर्ड सेडेशन. ये बात समझ में आती है सबके? ठीक है ना? ये क्या है? ये क्या है? फिंगर नेल. और ये क्या है? फुट नेल. ये नाखून के पास है ये पॉइंट. ये भी नाखून, पैर के नाखून. ये हाथ का नाखून. दिस इज हैंड नेल, दिस इज फुट नेल, लेग नेल. तो इफ वी पुश द chi from top to bottom, that is towards the nails, it is always sedation. ठीक है? हेलो? नहीं, नहीं ठीक है. आई शैल रिपीट. मैं फिर से रिपीट करता हूं. नॉट क्लियर। हम्म. क्लियर नहीं है अभी। हाँ, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं. देखो, ये ऐसे है ना. ये हाथ और पैर कैसे है? एनिमल पॉस्चर. वो तो मालूम है ना कैसा है. तो फर्स्ट फेस ग्राउंड लेवल पे है, वो नेल की तरफ है. और जो अपर फेज है, हायर फेज है, वो किधर है? एल्बोज एंड नी की तरफ है. एम आई राइट? तो Yes, sir. टोन और सेडेट अगर आपको डायगनली करना है, स्पाइरल मेरिडियन में करना है, तो क्या करना चाहिए? पहले अगर टोन करना है तो हॉरिजेंटल मेरिडियन में टोन करो. फॉर एग्जाम्पल P6. P6 को हमको अगर हॉरिजेंटली करना है, सेडेट करना है, तो हम ऐसे रखते हैं. ये नहीं दिख रहा है? हाउ टू शो इट? अच्छा, यहां पे दिखाए तो बेटर है. मान लो TW5 को हॉरिजेंटली हमें टोन करना है. ये दिख रहा है सबको? ये TW5 को हॉरिजेंटली टोन किया. ये दिख रहा है अभी? ये Yes, दिख sir. रहा है? Yes, sir. छोटी उंगली की तरफ येलो. Yes, sir. दिस इज टोनिफिकेशन ऑफ TW5. ठीक. हाँ। अब टो के पास लोएस्ट फेज है और हायर फेज किधर है? टुवर्ड्स द एल्बो. तो अगर नीचे के फेज से ऊपर के फेज में जाएंगे तब टोनिफिकेशन होगा. हेलो? तो अगर हमें डायगोनल में, मतलब स्पाइरल मेरिडियन में TW5 को टोन करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो येलो वाला है एल्बो हॉरिजॉन्टल में, ये टोनिफिकेशन पहले हमने रखा. और अब इसको क्या किया कि हमने इसको अपर फेज की तरफ डाल दिया. दिस इज TW5 टोनिफिकेशन इन स्पाइरल मेरिडियन. It should be straight or slanting. स्लैंटिंग 45 डिग्रीज. 45 डिग्री आधा. 90 डिग्री में होता है ना दो कंपोनेंट. रिजल्ट किधर जाएगा? बीच में आएगा. हेलो Okay. रमेश जी, ये देखो TW5 को स्पाइरल में टोन किया है. जी सर। ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या किया पहले हमने? पहले हमने हॉरिजेंटल में टोन किया.
और अब क्या किया, नीडल थी तो नीडल को घुमा दिया, या मैग्नेट है तो मैग्नेट को घुमा दिया, किधर ऊपर घुमा दिया तो टोन हो गया। एल्बो साइड में घुमाया तो टोन हो गया। हाँ, आधा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि एल्बो साइड में हायर फेज है, नेल से चल के ऊपर चल रहा है फेज, लोअर फेज से हायर, नेक्स्ट फेज में हायर फेज में ची को ट्रांसफर करना है, ऐसे घुमा दिया तो टोनिफिकेशन। अच्छा, अब अगर सेडेशन करना हो, हम साइड। सेडेशन करना हो तो सबसे पहले हॉरिजेंटल में सेडेट करना चाहिए। तो हॉरिजेंटल में अगर हमें TW5 को सेडेट करना है तो हमें येलो किधर जाना चाहिए, थंब साइड में। देखो, ये TW5 मान लो कि हमने सेडेशन हॉरिजेंटल में है, ये दिख रहा है, येलो किस तरफ है, थंब हम साइड। साइड। ये सेडेशन ऑफ TW5 इन हॉरिजेंटल मेरिडियन। अब अगर डायगोनल में सेडेट करना है, स्पाइरल मेरिडियन में सेडेट करना है, तो क्या करना चाहिए, लोअर फेज में भेजना है, ची को कहां भेजना है, लोअर फेज। लोअर फेज किधर है, टुवर्ड्स नेल्स। हाँ टेल साइड में है, क्योंकि हाथ नीचे है, हाथ ऐसे है ना, तो लो इधर है, हायर फेज इधर है। तो डायगोनल में अगर हमें सेडेट करना होगा तो पहले हॉरिजेंटल में सेडेट करेंगे, और सेडेट ना करके सीधे हम क्या करेंगे, येलो को नीचे की तरफ घुमा देंगे। ये डायगोनल में TW5 सेडेट हो गया, स्पाइरल मेरिडियन। स्पाइरल मेरिडियन में जब भी TW5 का पॉइंट आया और सेडेट करना है, ये सेडेशन हुआ। वेंकटेश, हाँ, आपने मिस्टेक किया है जो आपने भेजा है, दिस टाइम यू करेक्ट इट एंड देन सेंड अगेन सेम थिंग। ये सेडेशन है। स्पाइरल मेरिडियन में TW5 सेडेशन कैसे, हमने पहले इमेजिन किया कि हमने हॉरिजेंटल में सेडेट किया, बाद में येलो को हमने लोअर फेस मतलब नेल की तरफ घुमा दिया तो सेडेशन। टोन करेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा रखेंगे और हायर फेस की तरफ घुमा देंगे, मतलब इधर घुमा देंगे। यस सर। ये बात अभी क्लियर हो रही है रमेश जी आपको? हो रही है सर, लेकिन 2-3 बार जब मैं फिर से बताता हूँ। हाँ अभी फिर बताए। दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, P7, कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, P7। पेरिकार्डियम 7। पेरिकार्डियम 7 में हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन कैसे होगा, पेरिकार्डियम का P7 किधर है, यहां है या यहां है, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे इधर ये है ना, इसको टोन करना है मान लो, तो टोन करना है तो येलो किधर जाएगा, येलो विल छोटे गो मिलते थे। टू स्मॉल फिंगर मिडिल साइड। फिंगर। या ये हॉरिजेंटल में टोनिफिकेशन है, उल्टा सीधा लग रहा है। P7 को हॉरिजेंटली टोन किया है, दिख रहा है ना स्मॉल फिंगर, ये थंब है, येलो किधर है, इधर, स्मॉल फिंगर साइड। हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन है P7 का, P7 का हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन ये है, और सेडेशन किधर होगा, सेडेशन जस्ट द रिवर्स, ये सेडेशन है, थंब साइड येलो, दिख रहा है सबको? दिख रहा अगर है सर। हमको स्पाइरल मेरिडियन में P7 को टोन करना हो तो हम कैसे करेंगे, स्पाइरल मेरिडियन में टोन करने के लिए पहले आप इमेजिन करिए, दिमाग में सोचिए कि हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन कैसे होगा, ऐसे होगा, छोटी फिंगर की तरफ येलो, और टोन करने के लिए हायर फेज में जाना है, मतलब टुवर्ड्स एल्बो, येलो को किधर घुमाएंगे, एल्बो की तरफ घुमा दिया, ये P7 स्पाइरल मेरिडियन में टोनिफिकेशन हो गया।
रमेश, यस सर। ये समझ में आ रही है? आ रहा, समझ में आ रहा सर, आ रहा है। पहले हॉरिजेंटल में इमेजिन करो दिमाग में, टोन कैसे करेंगे, सर इजी है। स्मॉल फिंगर के साइड येलो। यस सर। अब उसको हायर फेस की तरफ, मतलब एल्बो की तरफ अगर घुमा दिया तो टोन हो गया। और सेडेट करना है तो क्या करो, पहले हॉरिजेंटल में सेडेशन इमेजिन करिए। ये हॉरिजेंटल में सेडेशन हमने इमेजिन कर लिया। और हमें ठीक है। चूंकि डायगोनल में सेडेट करना है तो लोअर फेस मतलब नेल की तरफ घुमा दो येलो को। नेल की तरफ घुमा देंगे तो सेडेशन हो जाएगा। पहले हॉरिजेंटल में सेडेट कर लिया, नेल की तरफ घुमा दिया तो सेडेट, और एल्बो की तरफ घुमा दिया तो टोन हो गया। सूरज, श्रीधर, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Getting clear. एकदम सर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। केतन भाई, सर ये समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से? हाँ आप तो यूज भी सर कर रहे हो ना, आप तो यूज कर रहे हो ना इस तरह के? हाँ हाँ सर। Sir, सर टोन direction करना है of तो एल्बो meridian. की तरफ। एक बार में एक आदमी बोलिए, हाँ बोलिए। Sir, direction of meridian का कुछ लेने देना नहीं है ना? कुछ नहीं लेना देना। अपने को फेस टू फेस करना है। वी Okay. आर नॉट टोनिफाइंग दी, वो ओरिजिनल वो वर्टिकल मेरिडियन भूल जाइए आप। ठीक है। बीजी ठीक है मेरिडियन सर। का टोनिफिकेशन और सेडेशन, इट विल बी डिफरेंट देन द टोनिफिकेशन सेडेशन ऑफ द 12 रेगुलर मेरिडियंस। यहां हम सर क्या कर रहे हैं, सबसे पहला फेज नेल के पास है, हाथ में भी और पैर में भी। हायर फेज किधर है? पैर में, घुटने की तरफ, घुटने की तरफ। टुवर्ड्स नी, और हाथ में टुवर्ड्स द एल्बो, दैट इज हायर एल्बो। फेज। सो whenever we push the chi towards knee or towards elbow, it is tonification. तो पहले क्या करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल में टोनिफिकेशन सेडेशन जो भी आपको करना है हॉरिजेंटल में पहले इमेजिन करो, एंड देन पुट द डायरेक्शन ऑफ द पुश सेडेशन के लिए टुवर्ड्स नेल्स, और टोनिफिकेशन के लिए टुवर्ड्स नी एंड एल्बो। हाँ बोलिए कन्या। छोटा डाउट। तो आपने सर हाथ के पॉइंट के बारे में आपने बताया था कि फ्रॉम थंब टू लिटिल फिंगर इज वन स्मॉल फिंगर, एंड स्मॉल फिंगर टू थंब इज द सेडेशन. Similarly with the feet also, sir, big toe to small finger in same. नो, वहां दिक्कत है, इसलिए हमने उसको साथ में नहीं बताया है, अभी ठीक है. बताएंगे। So the concept is towards कंसेप्ट the. कंसेप्ट इज एज द ची मूव्स, बिकॉज अगर किडनी के पॉइंट है, हाँ सर. वी कांट गो टुवर्ड्स हैंड, वी विल ठीक हैव है. टू कम I बैक। got it, sir. I will not jump to that. As and when you tell, I will come. डोंट जंप So इट, अभी हम पैर का बताएंगे। so towards the nails, it is sedation. Towards the elbow or the knees, it is a tonification in diagonal. I got it, sir. Yeah. टुवर्ड्स द हैंड्स, लेग, अगर हाथ का पॉइंट है टुवर्ड्स द लेग इट इज टोनिफिकेशन, टुवर्ड्स द हैंड माने अपोजिट टू द लेग इज सेडेशन। सर LU8, अगर अगर हमने LU8 लिया हम्म, तो अपना जो येलो पार्ट है मैग्नेट का, अगर वो स्मॉल फिंगर की तरफ है तो वो हॉरिजॉन्टल टोनिफिकेशन हो गया। हाँ हाथ में तो इजी है ना, हाँ स्मॉल फिंगर की तरफ टोनिफिकेशन, थंब की तरफ सेडेशन। हाँ हाथ में एक ही रूल है, कोई भी पॉइंट हाँ। होने दो, तो यांग में तो होने दो, अगर, यिन में होने दो। हाँ तो अगर हमने वो व्हाइट को एल्बो की तरफ घुमा दिया, व्हाइट को नहीं, येलो। एल्बो को। हाँ सॉरी एल्बो सॉरी, येलो को हमने एल्बो की तरफ घुमा दिया तो टोन। तो LU8 का स्पाइरल टोन हो गया। हाँ, अगर हॉरिजेंटल में टोन किया है तो स्पाइरल में टोन हो गया। हॉरिजेंटल में अगर सेडेट करके आपने ऊपर की तरफ घुमा दिया तो वो दूसरा ही कुछ हो गया। उसमें क्या हो गया, उसमें हॉरिजेंटली सेडेट हुआ हाँ और वर्टिकली टोनिफिकेशन हो गया। सो यू हैव गॉन टू द अदर क्वार्टर। तो अगर तो वर्टिकल मेरिडियन में भी ट्रीट करना है सेम पॉइंट को, और हॉरिजेंटल में, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, मैं बाद में बताता हूँ, आई विल टेल यू लेटर। पहले आप सिंपल सीख लो, ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स वी कैन गो। हमारी ट्रीटमेंट सारे क्वाड्रेंट्स में हो जाती है, क्योंकि ची कैन गो एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड सर। ओके। अभी उसमें डोंट गेट कंफ्यूज, आप सिंपल टोनिफिकेशन सेडेशन केवल अभी सीखिए, उसके बाद आई विल टेल यू अपोजिट फ्लो, देन आई विल टेल यू नेक्स्ट नेक्स्ट। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा।
ठीक है। अभी हम क्या सीख रहे हैं? हॉरिजेंटल मेरिडियन में किसी भी पॉइंट का, हाथ की किसी भी मेरिडियन का टोनिफिकेशन के लिए yellow or the point of the needle. If you are using needles, how will you do that? This is elbow की तरफ. tonification and this is sedation. चाहे इधर हो चाहे इधर हो, अगर इधर है तो कैसे करेंगे? दिस इज टोनिफिकेशन एंड दिस इज सेडेशन. Sedation. हॉरिजेंटल. सिंपल है, समझ में आ रही है? अब अगर आपको डायगोनल मेरिडियन में टोन करना है तो पहले आप हॉरिजेंटल मेरिडियन में टोनिफिकेशन रखिए. अभी आपने डायगोनल में टोन करना है तो पहले आपने इमेजिन किया हमने हॉरिजेंटल में टोनिफिकेशन ऐसे रखा. जो भी पॉइंट होने दो, जिस भी मेरिडियन का होने दो. और अगर हमें टोन करना है तो टिप हैज टू गो अप टुवर्ड्स एल्बो एंड नी. ये डायगोनल में टोनिफिकेशन होगा. एम आई क्लियर? सर एक ड्राइंग क्या दिखाऊं क्या? हाँ दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ. दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है. अरे कलर स्केच पेन से करो ना. और ओ, तुम्हारा फोकस इस- फोकस गड़बड़. अभी तुम्हारा फेस हाँ हाँ. फोकस करो फिर से. फोकस हाँ लगाओ, फोकस. लगाओ ठीक से. स्केच पेन से करो, करो ना. स्केच पेन से करो. सर सर. सबसे बढ़िया कल्याण के पास है, बड़ा मार्कर है. ही कैन, इफ ही कैन शो इट इज बेस्ट. कल्याण के पास है ना एक ब्लैक मार्कर में येलो कैप लगा हुआ है. सो वी कैन आस्क कल्याण टू शो अस द होल थिंग. हाँ देखो P6 में दिस इज टोन. अब आप कल्याण आप मत बोलिए, आप पकड़ के रखिए. हाँ. अब ऐसे पकड़ के रखो. P6 टोनिफिकेशन कैसे लगेगा? P6 टोनिफिकेशन, हाँ दिस इज इट. सबको समझ में आ रहा है? दिस इज P6 टोनिफिकेशन इन हॉरिजेंटल. P6 को हॉरिजेंटली टोन किया है. अभी P6 को स्पाइरली टोन करने के लिए द येलो शुड गो टुवर्ड्स द एल्बो. दिस इज स्पाइरल टोनिफिकेशन. 45 डिग्री घुमा दिया. ये क्लियर हो रहा होगा सबको? बहुत अच्छा है इसका ये ब्लैक और येलो दिखाने के लिए. हेलो, इसमें कोई डाउट किसी को? पवन, आर यू ऑल राइट? इज इट क्लियर? यस सर. तो यस ब्लैक सर, क्लियर क्लियर सर. ब्लैक ब्लैक व्हाइट है और येलो येलो है. हाँ यस. आप येलो को देखो, आपको तो येलो को ही दिखाना है. सब सब काम येलो से हो रहा है. सब काम टिप से हो रहा है. नीडल की टिप येलो है. नीडल की टिप क्या है? येलो है. ठीक है रमेश. यस सर. और कौन है? सेडेशन. साई. भाग्यम, वो तो थोड़ा सा ही इज इन द फैक्ट्री. सूरज, इज इट ऑल राइट? सूरज, यस सर, यस सर. ओके. So now सो this नाउ, sedation, sir. हाँ, सो दिस इज नाउ क्लियर. ये क्या है? सेडेशन ऑफ P6. अब अगर हमें डायगनली सेडेट करना है, सेडेट करने का मतलब है येलो शुड गो टुवर्ड्स द नेल. दिस इज डायगनल सेडेशन ऑफ P6. ये क्लियर हो रहा है? पहले इमेजिन करना है हॉरिजेंटल में कैसे सेडेट करेंगे, टोन करेंगे. और फिर अगर सेडेट करना है तो येलो शुड गो टू द नेल. टोन करना है तो येलो शुड गो टू द एल्बो जॉइंट. सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट वी आर ट्राइंग टू फॉलो? वी आर ट्राइंग टू फॉलो सिंपल रूल. व्हाट? ची जो इधर से उधर जा रहा था, कौन सा ची? जो अभी हम लोगों को इसने बना के दिया. किसने? इसमें लैटरली इनवर्स दिख रहा है. हाँ तो इसलिए वो नहीं हो रहा ना. हाँ. मैं शायद कैमरा को ऐसा कन्वर्ट टर्न करूं तो. हाँ वो ऐसे ही होगा. ठीक है.
देखो ये कहाँ डाला है यार, श्रीधर ने दिया तो था, अच्छा ग्रुप में डाला है क्या? कौन सा हाँ सर? ये है, दिस इज द थिंग। नो, लेट अस गो। सर मैंने डाला हूँ, देखो तो आपको स्क्रीन पे दिखता है क्या? नहीं। एक मिनट, ट्राई टू हैव पेशेंस। ये दिस इज a good image. This will make everything clear. This is what Sridhar has sent us. Leg meridians and hand meridians दिख रहा है आपको? Yes, sir. Kidney, liver and spleen is leg meridian. Lungs, heart and pericardium is hand meridian. दिख रहा है ना? और Yes, sir. टोनिफिकेशन का सबका दिख रहा है। लंग्स के पॉइंट टोन होंगे, किधर टोन होगा? व्हेन वी पुश इट टुवर्ड्स लेग। हाथ Look. के मेरिडियन का पॉइंट पैर की तरफ हमने ठेला, पुश किया। इफ आई पुश द ची फ्रॉम हैंड मेरिडियन, वी हैव टू पुश इट टुवर्ड्स द लेग टू टोनिफाई। तो सेडेशन विल बी जस्ट द अपोजिट, उसके लिए कुछ नहीं करोगे। श्रीधर, यू कैन मेक sedation also like this, similar, opposite direction. I think you understand, isn't it, श्रीधर? यस सर, आई डू इट। हाँ, एक ऐसा बनाओ, इसको थोड़ा ऐसा करना, कलर करके, कंट्रास्ट करके, थोड़ा ये टोनिफिकेशन और इसका ये थोड़ा लाइन मोटा करने का। ठीक है। 2 इमेज बना देंगे सर, मैं कुछ हाँ करता हाँ हूँ। हाँ। हाँ, ऐसा जैसे मार्कर से ये किया ना, येलो वाला, इस तरह से करने का। सो नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, दिस इज टोनिफिकेशन साइकिल, सब कुछ टोनिफिकेशन है। तो अगर हमें किडनी की मेरिडियन को अगर टोन करना हो तो आर वी पुशिंग इट टुवर्ड्स हैंड? Liver. किडनी के मेरिडियन में कोई भी पॉइंट है, टोनिफिकेशन के लिए किधर हमको पुश करना है? टुवर्ड्स द हैंड और टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन? टुवर्ड्स द लेग ओनली। फ्रॉम लेग टू लेग मींस अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच हैंड लाइज। हाथ जिस तरफ है उसका अपोजिट डायरेक्शन में किडनी के किसी भी पॉइंट को टोन करने के लिए उस पॉइंट पर जो नीडल या मैग्नेट लगाएंगे, दैट शुड बी पुश्ड टुवर्ड्स हील, टुवर्ड्स हील एंड नॉट द टोनेल्स। किडनी की मेरिडियन कहाँ है? ये अभी बाहर लैटरल साइड में दिख रहा है। एक पैर को ले तो हमको हाथ दिखेगा, सिंगल लेग ले लिया इन साइड में तो हमको दिखेगा। देखो वो इमेज भी बनाने की कोशिश की जाएगी, सो वी विल सी व्हाट वी कैन डू। ये तो बैठे हुए को इन्होंने घुमा दिया, रोटेट किया है, सो दिस हैज बिकम लाइक दिस। तो टोनिफिकेशन में हाथ के पैर को टोन किया, हाथ के पॉइंट को टोन किया तो लेग की तरफ, लेग के पॉइंट को टोन करेंगे तो हाथ की तरफ पुश करेंगे, नहीं, एक्सेप्टिंग फॉर किडनीज। किडनी मेरिडियन की पॉइंट्स को टोन और सेडेट करने के लिए जस्ट इट इज द रिवर्स ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द मेरिडियंस। किडनी मेरिडियन एक ऐसी मेरिडियन है जिसके बाद ची कहां जाती है? वाटर फेज से फिर से वापस वुड फेज में आती है। और वुड फेज का मेरिडियन हमारे पास पैर से पैर में ही है। वाटर फेज पैर में है और वुड फेज भी पैर में है। तो वाटर फेज के पॉइंट के लिए, किडनी के सारे पॉइंटों को टोन करने के लिए वी हैव टू टेक रिवर्स डायरेक्शन, उल्टा लेना है, हाथ की तरफ नहीं फेंकना है। किधर फेंकना है? हील। हाँ, उल्टा। Okay. Let me see if I can show you. इसमें नहीं है तो let us see.
एक मिनट, ट्राइंग टू, ओके। सब लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। अब अगर मान लो हमारे पास ये आ गया, इधर आ गए हम, क्या डूइंग दिस, insert, this is it. So suppose this is leg. Now, अब हम लोग पैर की बात कर रहे हैं. We are now going to talk about meridians of legs. ये लेग है, यहां पर ये समझो किडनी मेरिडियन है. सपोज दिस इज किडनी मेरिडियन. दिस इज किडनी मेरिडियन. अब किडनी मेरिडियन में मान लो K3 पॉइंट है. सपोज, या K7 ले लो. लेट अस टेक K7. K7 सबको मालूम है. ऑल ऑफ यू नो वेयर इज K7. दिस इज K7.
अभी K7 को हमको हॉरिजेंटली टोन करना है, तो K7, हाथ किधर है? इधर है। पैर किधर है? इधर है। दिस इज लेग, दिस इज हैंड। और लेग में ये किडनी मेरिडियन है। किडनी मेरिडियन का पॉइंट नंबर K7 को अगर हमें हॉरिजेंटली टोन करना है, तो हाउ शैल वी डू इट? The needle should be kept like this. ये नीडल को ऐसा रखें। ये टोनिफिकेशन है। किडनी से ची कहाँ जाती है? किडनी से ची, सॉरी, किडनी पैर में है। लीवर तो लीवर कहाँ है? पैर में ही पैर है। में। तो वाटर फेज के बाद वुड फेज किधर है? पैर में ही है। तो नेक्स्ट फेज में जाने के लिए हमको हाथ की तरफ जाना चाहिए कि पैर की तरफ जाना चाहिए? पैर की तरफ। दैट मीन्स ये टोनिफिकेशन नहीं होगा। इसका ट्यूशन टोनिफिकेशन क्या होगा? और उल्टा। हाँ, ये होगा। अगर ऐसे नीडल लगाएं तो दिस विल बी K7 हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन। वेरी फनी। चलो, ठीक है। तो दिस इज हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन। अब अगर मान लो हमें डायगोनल में टोनिफाई करना है, तो हमें नीडल को कैसे रखना होगा? हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन पहले रख दिया, राइट। और फिर इसी को हमको घुमा के रखना है। कैसे घुमा के रखना है? टोन किधर होगा? टुवर्ड्स द नी के नी और टुवर्ड्स द फुट? नी नी towards the knee. हाँ, टुवर्ड्स द नी। ये है डायगोनल टोनिफिकेशन और ये है हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन। सेम नीडल हैज गॉन लाइक दिस, मतलब हमने क्या किया, इसी नीडल को हम लोगों ने ऐसे घुमा दिया। Same needle has to be turned like this. So this is K7 diagonal tonification. ठीक है। ये क्या है? K7 डायगोनल टोनिफिकेशन। तो अभी फुट कैसे है? फुट कैसे बना हुआ है? हैंड की तरफ में टोज है। ऐसे फुट है। तो ये क्या हाँ है? हील है ना? हाँ। दिस इज हील।
ये हील है। सो दिस इज K7 टोन स्पाइरल मेरिडियन। Because K7 point come can is also on the horizontal meridian, is also on the diagonal meridian, is also on the vertical meridian. K7 पर हमारे पास तीन मेरिडियन है, डायगोनल मेरिडियन भी है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी है और वर्टिकल मेरिडियन भी है। तो अगर हमें डायगोनल में करना है तो हमको इस तरह से करना होगा। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सबके? व्हाट्सएप में भेजा है कल्याण? यस सर, मतलब करेक्ट है सर वो, मतलब नहीं, ये वाला भेजा है कि आपने कुछ ड्रॉ करके भेजा है? नहीं, आप ही का ही मेरे जो रेगुलर फीड पे ड्रॉ किया है वो ओके, करेक्ट है तो शेयर कर दीजिए सर। स्क्रीनशॉट भेजा है। जी ओके। सर। तो अभी ये K7 को हमने क्या किया पहले, कि जब हमें टोन करना था तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स फुट, दैट इज टुवर्ड्स हैंड, व्हाट वी हैव डन, वी हैव गॉन टुवर्ड्स हील। ये देख रहे हैं ना आप? क्या किया हम लोगों ने इसको टोन करने के लिए? वी हैव डन लाइक दिस। और जब इसे हॉरिजेंटल में हमने टोन करके रखा और अब हमको डायगोनल में टोन करना है तो हमने क्या किया, इसी को उठा दिया, इसको हमने इधर कर दिया। अगर मान लो K7 को डायगोनल में सेडेट करना होता तो क्या करते? टोनिफिकेशन समझ में आ रहा है? अब हम लोग सेडेशन की बात करेंगे तब ये दोनों क्लियर हो जाएगा आपको आराम से। मान लीजिए कि वी हैव टू सेडेट K7 पॉइंट ऑफ स्पाइरल मेरिडियन, डायगोनल मेरिडियन। तो पहले हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि हमको सेडेशन करना है, तो हमको पहले ऐसे रखना होगा। तो फिक्स कर रखो। हाँ, हमको पहले ऐसे रखना होगा। ये K7 हॉरिजेंटल में सेडेशन क्यों? क्योंकि किडनी के बाद चीक किधर जाती है? लिवर में जाती है। लिवर पैर में ही है, उसका उल्टा करना है, मतलब हाथ की तरफ भेजो। दिस इज हॉरिजेंटल सेडेशन ऑफ K7। और अगर हमें डायगोनल में सेडेट करना है तो क्या करना होगा? टो की तरफ इसे घुमा देना होगा, सिंपल। अगर हम ऐसे घुमा दें तो क्या होगा? दिस इज K7 स्पाइरल मेरिडियन सेडेशन। ठीक है, इसकी भी ले लीजिए Not clear. स्क्रीनशॉट आप कल्याण। दिस ऑल्सो पुट, ये K7 स्पाइरल सेडेशन है, वो K7 स्पाइरल टोनिफिकेशन था। ये हील है और ये टो है। समझ में आ रही है? और लिख देता हूं मैं, लेट मी राइट इट।
दिस इज टो। ये टो है, ये हील है। दिस इज K7 स्पाइरल मेरिडियन सेडेशन। कल्याण, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, पुट इट इन द ग्रुप। हाँ, ठीक है सर। तो अभी टोनिफिकेशन का भी उन्होंने रख दिया और ये भी रख दिया, दोनों ग्रुप में आ गया। बोथ द इमेजेस हैव गॉन। So the previous I have not taken, sir. I will. सेकंड आपने बोला ना कि हमने लिया था। No, no, no. I have made my one. I thought I would show you, but it's okay, अच्छा, sir. तुमने अपना बनाया तो डालो उसको, इसमें ग्रुप में डालो, ठीक है सर। देख लेंगे करेक्ट है तो उसको लिख देंगे, यस दिस इज करेक्ट। इसी को अगर टोन करना हो तो हम कैसे करेंगे? ये K7 सेडेशन आपने ले लिया, इसका ग्रुप में आ गया, आई हैव सीन इट। नाउ लेट अस डू टोनिफिकेशन, लेट अस सी। टोनिफिकेशन क्या है? किडनी मेरिडियन के बाद ची किधर जाती है? लिवर में। लिवर का मेरिडियन किधर है? पैर में है। तो यहां की ची को हाथ की तरफ नहीं भेजना है, पैर की तरफ, मतलब उल्टी दिशा में भेजना है। तो हॉरिजेंटल पहले हम लोग इमेजिन करेंगे कि नीडल हम लोगों ने हॉरिजेंटल रखना है। This is tonification of K7 horizontal point on the horizontal meridian. K7 point horizontal meridian पे भी है ने, ये लंग्स की कोल्डनेस है, लंग्स हॉरिजेंटल की कोल्डनेस है। तो इसको हमने टोन किया। टोन करने के लिए हाथ की तरफ नहीं भेजा, हील की तरफ, टुवर्ड्स हील, यहां लगाया येलो, ये है। अब क्या किया? ये हॉरिजेंटल टोनिफिकेशन है। अब अगर हमें इसे टोन करना है डायगोनल में तो क्या करेंगे? नी की तरफ ले जाएंगे कि टो की तरफ ले जाएंगे? येलो को नी की तरफ ले जाएंगे। 45 डिग्री हमने घुमा दिया, और कुछ नहीं किया, खाली घुमा दिया। किसको? येलो को। और ये क्या हो जाएगा? नॉट सेडेशन। अभी क्या है ये? ये टोनिफिकेशन है। हेलो, सब लोग देख, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? दिख रहा है सर। ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी इट और नॉट, वट एवर वी आर जी। डूइंग? हम जैसे जैसे नीडल लगा रहे हैं, घुमा रहे हैं, आर यू एबल टू सी इट एंड अंडरस्टैंड इट? यस आप सर। दिख रहा है सर, और समझ रहे हैं इसको? एक बार कल वापस से सुनेंगे तब ठीक से समझ आएगा। Not अभी able to understand. अभी कौन सा रिपीट करूं? अभी K7 पॉइंट आपके पास पैर में है, ये मालूम है ना आपको? यस के सर। सेवन K7 है ना? अभी दिस इज इजी पॉइंट। अभी वी विल गो फॉर डिफिकल्ट सिचुएशंस, वहां पर थोड़ा सा हमको और थोड़ा समझना होगा। इफ दिस इज क्लियर इट विल टेक ओनली हार्डली 2 मिनट्स, जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करना। लेकिन आपको ये समझना होगा कि किडनी मेरिडियन में इट इज द अदर वे राउंड। नाउ इफ इट इज लिवर मेरिडियन तब क्या होगा? दैट वी हैव टू सी। सपोज दिस इज नॉट K7, दिस इज सपोज, चेंज करूं इसको? सबने देख लिया, समझ समझे लिया? इसका सर। ये स्क्रीनशॉट लेके रख दिया कि नहीं इसमें? नहीं दिया है यार, कहाँ दिया? व्हाई डोंट यू? कल्याण, कैन यू टेक द स्क्रीनशॉट?
Who can take the screenshot? I'll take it, sir. Sridhar? हाँ, good. Very good. Well done. सर मैं एक 4 इमेज डालता हूँ, एक एक बार देख लीजिए। K7 टोनिफिकेशन बहुत अच्छा। That's good. हील की तरफ डाला येलो को। So this is good. Very good. बहुत क्लियर डाला है, अच्छा डाला है। डाल रहा हूँ अभी, और आगे भी डाल रहा हूँ, 1 मिनट। यस, वेरी गुड। वेल डन वेंकटेश। आपने डाल दिया स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन दिस इज करेक्ट। श्रीधर, दिस इज sedition, वेरी गुड, वेल डन। श्रीधर इज गिविंग गुड पिक्चर्स, बहुत अच्छा कर रहा है। हेमंत, यस यू हैव गिवन द ये क्या डाला है? K7 स्क्रीनशॉट टोनिफिकेशन, यस दैट इज गुड। ठीक है, स्क्रीनशॉट है। दिस इज ऑल्सो राइट, इज ऑल्सो करेक्ट। वेरी गुड श्रीधर, यू आर डूइंग वेरी गुड, वेरी वेल। सेडेशन, ये स्पाइरल नहीं लिखा तुमने, हाँ स्पाइरल लिखा है, यस करेक्ट, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखो सर, ठीक है क्या? प्रेजेंट कर लो, अरे सिंपल सब हो में जाएगा। मैं लगा रहा हूँ ना, दिस ऑल थम्स अप लगा रहा हूँ। देखो सब लोग, ऑल ऑफ यू शुड सी इन द ग्रुप। चारों डाल दिया सर। हॉरिजॉन्टल टोनिफिकेशन, वेरी गुड, ठीक है। K7 का कर दिया है। अभी वी विल हैव टू डू लीवर 5। आर यू रेडी फॉर टुडे और वी विल डू इट टुमारो? लीवर 5 का सब लोग करके लाओ एंड वी विल डू इट इन द क्लास अगेन टुमारो। बहुत अच्छा डाला है श्रीधर ने, उसमें थोड़ा समझिए और समझ के। कल्याण, इज इट क्लियर टू यू एज वेल? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। अच्छा, हमने जब थम्स अप लगा दिया दैट मीन्स इट इज करेक्ट। दैट इज द स्टैम्प। ये स्केच है, अब अच्छा समझ आया सर, अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना रमेश? हाँ हो गया सर। हाँ, अब लिवर का करना है। लिवर विल बी द अदर वे राउंड। लिवर अलग होगा, क्यों? क्योंकि लिवर की ची कहाँ जा रही? द ची ऑफ द Heart लिवर foot. मेरिडियन इज गोइंग टू हार्ट मेरिडियन विच Heart. इज इन द हैंड। Therefore, it will be normal. Leg to hand, you have to push. ठीक है, और सेडेशन के लिए नीचे, टोनिफिकेशन के लिए ऊपर। You should do it and try to put the images in the group. और जिसका जिसका सही रहेगा सब बहुत अच्छा है। I will put thumbs up. Venkatesh, are you understanding it? Venkatesh? Oh, he has gone somewhere. No problem. तो आज की बात इतनी, कल फिर होगी मुलाकात। लेट अस डू इट विद इन अ डे और टू। सारे प्रैक्टिकल खत्म करना चाहिए। अभी इसके बाद वी विल कम टू द डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट टोनिफिकेशन सेडेशन। 2-3 पॉइंट्स हैं दैट आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। दे आर लिटिल डिफिकल्ट, ट्रिकी है वो, तो वो हम बताएंगे आप अलग से। एंड देन वी विल गो टू थेरेपेटिक्स, कैसे इलाज करें, क्या करें, कब करें, when to use horizontal meridian, when to use, and then we will go to correlate it with electroacupuncture. ठीक है? So let us do it in 3-4-5 days. आशा है सब कुछ हो जाना चाहिए।